السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میں مرزا صفدر بیگ، لیکچرر اسلامک اسٹڈی گورنمنٹ کالج وسیع پور، پی ایچ ڈی اسکالر پنجاب یونیورسٹی، ایم اے اردو، ایم اے اسلامک اسٹڈی، ایم اے عربک، ایم اے ہسٹری، ایم اے ایجوکیشن، بی ایڈ، فاضل عربی، فاضل فارسی، فاضل اردو، دیگر ڈگریز، درس نظامی، وفاق المدارس اور حافظ قرآن الحمدللہ۔ میں آپ سے مخاطب ہوں اور آج میں آپ کو انٹروڈکشن کے بعد یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مقصد اور ایک ویژن لے کے ہم اس یوٹیوب پہ آئے ہیں، اور کوشش یہ ہے وہ ویژن اور وہ مقصد لوگوں کی خدمت اور لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم سہولیات پرووائڈ کرنے والے ہیں۔ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے، ایک پہلے میں نے حدیث لکھی ہے، خیر الناس من ینفع الناس۔ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے علم سے نوازا ہے اور میں گورنمنٹ کالج میں تدریسی فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے۔ تو میری اب یہ خواہش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی، جو لوگ مختلف اداروں میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھ چکے ہیں اور جابس کے لیے تلاش ہے یا اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو سماج کے اندر اپنے کچھ مسائل ہم سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارا ایک ٹارگٹ ہے کہ ہم ان کے لیے فیسیلیٹیشنز یہاں پہ مہیا کریں، ہم ان کو سہولتیں یہاں پہ مہیا کریں اور ان کے مسائل کا ہم یہاں پہ حل کریں۔ کوشش یہ ہے، اور جو چیز وہ سمجھنا چاہتے ہیں ان کو سمجھائیں، اچھی طرح گائیڈنس، کیونکہ مشورہ ایک امانت ہے، اور کوئی آپ سے مشورہ کرتا ہے تو اس کو بہترین مشورہ دینا چاہیے، کیونکہ اگر آج آپ بہتر مشورہ دیں گے تو کل آپ کو آپ کے بارے میں اور آپ کی فیملی کے بارے میں کوئی بہتر مشورہ دیا جا سکتا ہے۔ آج کسی کا بھلا کریں گے، کل خدا اس کے صدقے آپ کا بھلا کر دے گا۔ لہٰذا ہمیشہ لوگوں کے لیے یسرا ولا تعسرا، یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، تنگیاں پیدا نہیں کرنی۔ تو جو لوگ، جو طلباء ہمارے مختلف مراحل میں ایجوکیشن گین کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے، اور جو لوگ ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اب اپنا نیکسٹ جو ایجوکیشن کا یا جابس کا جو پروسیس وہ شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہاں پہ رہنمائی کے لیے ہم نے ایک چینل بنایا ہے۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کر دی، نفع پہنچانا لوگوں کو مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو اس کار خیر میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہم سب لوگ یہاں پہ فیسیلیٹیشنس مہیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا یہ بیان کرنا قبول و منظور فرمائے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیو ہوپ اکیڈمی۔ نیو ہوپ اکیڈمی میں نے نام اس لیے رکھا ہے کہ نئی امید، نئی امید جو ہوتی ہے نا انسان کو، یہ امید ہی ہے جو انسان کو اس دنیا میں جینے کے قابل بناتی ہے، وگرنہ انسان دکھوں میں اس قدر گھرا ہوا ہے، مسائل میں اس قدر گھرا ہوا ہے کہ شاید اس کو زندگی نہیں لگتی۔ ہر نئی امید کے ساتھ انسان اپنے نئے دن کا آغاز کرتا ہے، اور اسی امید کو پورا کرنے کے لیے وہ سر توڑ کوشش کرتا رہتا ہے، اور پھر جب شام کو وہ امید پوری ہوتی ہے، اس کے ساتھ امید ایک اور آتی ہے جس کے لیے وہ اگلے دن بھی، اور اسی طرح بچپن سے لے کر آخر تک ہم مختلف امیدوں کے صدقے ہم سہارے جیتے آئے ہیں، اور یہ امید ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ مگر یاد رکھیں، جہاں پہ امیدیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں پہ بے بسی ہوتی ہے، وہاں پہ مایوسی ہوتی ہے۔ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ سب یہی کہتا ہے، اور تمام کے تمام ریلیجن میں یہی سبق ہے کہ انسان کو کبھی بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ انسان کو ہمت، حوصلہ، جذبے سے اور امید سے اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی بہتری کے لیے انسان کو ورک کرنا چاہیے، اور ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے جس دن اس کی ساری امیدیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو نیو ہوپ اکیڈمی بھی اسی لیے ہے۔ اس کے ہم 3 طرح سے ہم کیٹیگریز کی ہے اس کی ہم نے سیریز کی ہے۔ ایک سیریز ہے ایجوکیشنل گائیڈنس،
सेकंड सीरीज है प्रोफेशनल गाइडेंस और तीसरी है सोशल गाइडेंस। हम 3 तरह के लेक्चर इस चैनल पे हम अपलोड करेंगे। तो आप लोगों के जो भी मसाइल हैं, ये आज इंट्रोडक्शन है, पहला लेक्चर है। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के मकासद क्या हैं। वो मकासद आज आपके सामने है कि खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, लोगों के लिए नफ़ा बख्श करना है। लोगों के लिए आप पुल का किरदार अदा करें जिसके ऊपर से लोग आसानी से गुजर सकें और आपको अच्छे नाम से याद कर सकें। जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हमारे लेक्चर एजुकेशन के रिलेटेड होंगे तो उस वक्त हम एजुकेशन सीरीज पहले फ्रंट पे लिखेंगे। एजुकेशन सीरीज जिस पे होगा तो आप ये याद रख लें कि वो लेक्चर एजुकेशन के रिलेटेड होंगे, एडमिशन्स के रिलेटेड होंगे, जिसमें हम मदरजा ज़ैल चीज़ें वहाँ पे हम दर्ज ज़ैल चीज़ें जो है ना हम यहाँ पे उसमें बयान करते रहेंगे जो लोगों के मसाइल होंगे। इसमें हम तुलबा के तालीमी अमूर की बात करेंगे। इसमें हम तुलबा के लिए जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले होते हैं उसकी अपडेट देते रहेंगे और उसकी पूरा मेथड अप्लाई कैसे करना। देखिए, बाद लोग बाहर जाते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे बहुत सारे पैसे लगते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, कैरियर काउंसलिंग नहीं होती, कौन सी डिग्री रखनी है, कौन सा सब्जेक्ट रखना है, मैट्रिक के बाद क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट ICS, FSA, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ICOM, ये बच्चे परेशान होते रहते हैं और आगे इनकी आगे के फील्ड्स हैं जिसमें वो परेशान होते हैं। हमारा काम उनके लिए रहनुमाई मुहैया करना है कि आप क्या क्या करें। और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन जब होते हैं उसके लिए हम ऐड बनाएंगे कि आप ये फ़लाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो रहा है। तो सबसे पहले दाखिले का हम यहाँ पे लोगों को बताएंगे कि किस किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहे हैं और क्या तरीक़ाकार है, फ़ीस क्या है, पूरा प्रोसीजर क्या है, वो सारा आपको बताएंगे। फिर मुख्तलिफ अगर लोग डिग्री लेना चाहते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़फ़र यूनिवर्सिटी और इसी तरह सरगोदा यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो या बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हो, तो उससे डिग्री लेने का प्रोसेस या इस तरह के वेरिफिकेशंस के और जितनी भी प्रोसेस हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एमफिल PhD के एडमिशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको पता नहीं चलता कि एमफिल PhD के एडमिशन कब होते हैं और क्या क्या करना होता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात करनी है कि एडमिशन कब होते हैं, क्या करना है और किस तरह अप्लाई करना है और मुकम्मल उसका प्रोसेस क्या है और इसके तमाम अमूर, यानी कि ये जो हमारी एजुकेशनल गाइडेंस है इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा तुलबा को हम फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं कि उनके वो मसाइल जो वो अपने दिमागों में, अपने जहन में लेकर फिरते हैं और कभी उससे पूछते हैं, कभी उससे पूछते हैं और कोई सही मशवरा उनको नहीं मिल पाता, तो उनके लिए यह है कि वो अगर इस चैनल से अटैच रहेंगे तो उनको मैक्सिमम चीज़ें उनको मिलती रहेंगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा इस जगह पे आकर अपने कैरियर के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो एक सीरीज़ हमारी एजुकेशनल सीरीज़ होगी जिसके अंदर हम एजुकेशनल गाइडेंस देंगे। उसमें मैंने आपको बता दिया एडमिशन, डिग्रीज, दाखिले, जितनी भी चीज़ें हैं, फी प्रोसेस किस यूनिवर्सिटी में है, कहाँ से करना है, कौन सी HE से एफिलेटेड है, कौन सी एफिलेटेड नहीं है। ये ना हो कि बच्चे पैसे ज़ाया करते रहें और एफिलेटेड यूनिवर्सिटियों में, नॉन एफिलेटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। तो ये भी चीज़ें हमने आपको क्लियर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाना है। तो एक तो फ़ायदा ये है। दूसरा सेकंड पे हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोफेशनल गाइडेंस की। प्रोफेशनल जब भी तुलबा या कोई भी एजुकेशन को कंप्लीट करता है तो उसका फौरी मकसद होता है प्रोफेशनल लाइफ में आना। तो प्रोफेशनल लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट है हर बंदे के लिए। हर इंसान चाहता है कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो बेहतरीन हो। हर इंसान ये चाहता है कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो। उसके लिए अब मुख्तलिफ लोगों से काउंसलिंग करता है, मुख्तलिफ लोगों से पूछता है। तो उनके लिए हमने यहाँ पे एक रहनुमाई रखी है जो प्रोफेशनल गाइडेंस सीरीज जो है, इसके अंदर हम प्रोफेशनल के अंदर हम सिर्फ उन लोगों की रहनुमाई करेंगे तो जो प्रोफेशनल अपनाना चाहते हैं, कौन सी डिग्री है, किस शोबे में जा सकते हैं, जॉब्स कहाँ पे आई हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में आई हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में आई हैं, NTS या किसी और तंजीम के तहत जो सिलेक्शंस होती हैं उसके क्या तरीक़ाकार है, उसका पूरा
प्रोसेस क्या है, तो सारा यहाँ पे बताना हमारा मकसद है। और उस बताने के मकसद के साथ साथ उसके लिए मुकम्मल प्लानिंग है। पहले तो काउंसलिंग करनी है कि डिग्री कौन सी है, कहाँ जा सकते हैं, ये बताना है। दूसरे तौर पे आप जॉब करनी है तो इसके क्या क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं। फिर हमने ये बताना है कि कब कब जॉब और कहाँ कहाँ आई हुई है, तो ये बताएंगे। तीसरे नंबर पर हम मज़ामीन के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई करेंगे कि आपने मज़ामीन की तैयारी कैसे करनी है। जैसे अक्सर सीटें हमारे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में देखिए, एक गरीब इंसान के लिए और एक टैलेंटेड बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन जो अपॉर्चुनिटी है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, कि जिसके अंदर वो अपने एबिलिटीज को शो करके वो जॉब गेन करता है। यानी कि ये वो इदारे हैं जिसके अंदर सिर्फ आप एक इदारे की फीस 400 या 600 रुपए 300 रुपए जो फीस होती है वो फी पे करके आप उस जॉब को हासिल कर लेते हैं। मगर लोगों को पता नहीं होता, मास्टर्स हो जाते हैं, एमए कर लेते हैं, फिर में एडमिशन हो जाता है, मगर उनको पब्लिक सर्विस कमीशन का पता नहीं होता तैयारी कैसे करनी है, पेपर में क्या क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट क्या है और किस तरह अप्लाई करना है, वो सारे पूछते रहते हैं। तो इस सीरीज में प्रोफेशनल गाइडेंस में हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे, जॉब्स कहाँ पे आई हैं और कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है और इसकी तैयारी कैसे करनी है। और फिर तैयारी के लिए हम अपने जो मुख्तलिफ हमारे टीचर्स हैं या मुख्तलिफ हमारे इदारे हैं, अकेडमीज़ हैं, उनके हवाले से मुनासिब रहनुमाई बुक्स और नोट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम आपका फ़ायदा हो जाए। और ऐसी ही एक सीरीज जो हमारी चल रही है अभी रिसेंटली जो लेक्चरर के लिए सीट्स आई हैं उसके लिए हम एक प्रॉपर तैयारी करवा रहे हैं। और अगर कोई उसमें से तैयारी करना चाहता तो हमसे रब्ता कर सकता है। वो प्रॉपर तैयारी है ताकि लोगों को अच्छी तरह रहनुमाई कर दी जाए। और लोग परेशान फिरते हैं, उससे पूछते इससे पूछते हैं, ये चीज़ें हमने यहाँ पे चूँकि जो दुनिया डिजिटल है हो रही है, दिन ब दिन दौर बदल रहे हैं और डिजिटल ज़माना आ रहा है, तो आज दुनिया एक दूसरे के ज़्यादा करीब है। बजाय इसके कि आप उधर फिरें इधर फिरें, आप घर बैठे अपनी सारी ये चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ गेन कर सकते हैं। तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल पे आप अटैच रहें, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपको यहाँ इसी चैनल से मिलेंगी। ये दो चीज़ें। और तीसरी चीज़ है वो ये है सोशल गाइडेंस। हमारी सीरीज़ है सोशल गाइडेंस की। इसमें हम मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स, मुख्तलिफ इश्यूज़ जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्ज कीजिए किसी का अगर माशरे के अंदर कोई प्रॉब्लम कोई हल चाहता है और हमारे माशरती मसाइल में कोई हल चाहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस हवाले से हमारी बेहतरीन रहनुमाई करेंगे। ये देखिए, मैंने पहले भी बताया, हमने नाम लिखा है न्यू होप अकेडमी। आज दुनिया के अंदर, समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने समाज से बिल्कुल नाउमीद हो चुके हैं, जो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं और जिनके लिए मुआशरे के अंदर जीना एक बड़ा मसला बन चुका है। वो मसाइल बहुत सारे हैं, यहाँ पे बयान अभी नहीं किए जा सकते। वो मसाइल भी आपके सामने बयान करना ये भी मकसद है। यहाँ पे फिक़ही मसाइल, दीनी और शरई मसाइल, यानी कि हमने इख्तलाफात में और एक दूसरे को तोड़ने में नहीं जाना, हम जाएंगे एक दूसरे को जोड़ने में। हम एक दूसरे को मोहब्बत, प्यार, जीने का अंदाज सिखाना है कि एक दूसरे के लिए जीना है और कैसे जीना है। तो ये सारी चीज़ें हम इस सोशल गाइडेंस की सीरीज जो हमारी होगी उसमें इंशाल्लाह ताला हम शेयर करते रहेंगे। हाँ, जब इसमें होंगे तो आप अपने पर्सनल मसाइल जो आप पूछना चाहेंगे, कोई मसला है, शरई मसला, कोई फ़िक़ही मसला है, वो भी आप इस लिहाज से पूछ सकेंगे। और इंशाल्लाह हम इस पे आपको जो दीन इस्लाम की बातें हैं वो भी इस चैनल पे हम बताएंगे, और जो आपके जो करने के काम हैं वो भी इस चैनल पे हम बताएंगे। बस आप ये याद रखिएगा कि ये 3 टारगेट्स हैं, एक हमारे एजुकेशनल गाइडेंस, प्रोफेशनल गाइडेंस और सोशल गाइडेंस। इन 3 तरीक़ों से हम इस चैनल को चलाएंगे, जिस चैनल का नाम है न्यू होप अकेडमी। न्यू होप अकेडमी तीनों लिहाज से, क्योंकि ये तीनों मरहले इंसान के लिए बड़े मुश्किल होते हैं और बड़े फैसला कुन साबित हो सकते हैं। एजुकेशनल इस लिहाज से भी हमने करना है, प्रोफेशनल इस लिहाज से भी हमने करना है, सोशल इस लिहाज से भी करना है, क्योंकि तालीम बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में एजुकेशन गेन करना बहुत ज़रूरी है, जिसके साथ बहुत सारे मफाद और मकासद हमारे जुड़े होते हैं, इंसानियत जुड़ी होती है और जिसके साथ बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है। लिहाजा उन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के लिए नई उम्मीद अकेडमी, जिसके नाम से ये चैनल बनाया गया है, तो वो इंशाल्लाह हम सारे यहाँ पे ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर इररिलेवेंट चीज़ें इंशाल्लाह
نہیں ہوگی، ایسی چیزیں جو اس سے تعلق نہیں رکھتی، وہ ایسا نہیں. ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے کاؤنسلنگ کر سکیں، اچھی کاؤنسلنگ کر سکیں. میں نے آپ کو انٹروڈکشن شروع میں اس لیے کروایا کہ ہم زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہتر سے بہتر جو فیسلٹیز ہے وہ مہیا کی جائیں. تو آپ پروفیشنل گائیڈنس، سوشل گائیڈنس، یہ 3 ہماری سیریز ہے. اس پہ جو ہماری ویڈیو آئے گی وہ اس لحاظ سے آئے گی. اگر اس پہ ایجوکیشنل لکھا ہے تو وہ اس پہ پھر طلباء، اسٹوڈنٹس اور جو ایڈمیشنس کے لیے اور جو بی ایس سی ایم فل کے لیے اور مختلف یونیورسٹیز میں جانے کے لیے، انٹر کے اسٹوڈنٹ، میٹرک کے اسٹوڈنٹ اور یونیورسٹیز کے، کالجز کے اسٹوڈنٹ اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں. پروفیشنل میں وہ لوگ جو اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کر چکے ہیں یا جس جگہ پہ ایجوکیشن کو چھوڑ چکے ہیں اس جگہ پہ ان کے لیے کون سی جابس ہو سکتی ہیں وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں. اور سوشل گائیڈنس میں ہم اپنے سماج کے اندر جو پائے جانے والی چیزیں ہیں ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. یہی ایک سوچ، یہی فکر ہے کہ لوگوں کے لیے نفع بخش بنے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مقصد میں کامیاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو کاوش کو قبول و منظور فرمائے. والسلام.